जितनी मेहनत हम लोग मेंस में स्पेसिफिकली MMP प्लस में करते हैं उतनी हम कहीं नहीं करते. आई थिंक वी आर one of the very few people in the industry to give this much importance to mains. This is one of the program जहाँ से पिछले 5 से 6 सालों में हमने more than 500 toppers देखे हैं, including the one who is standing here. Write Smart के लिए जो मेरा आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव है, you can come offline and you can sit in front of me and write your answers there. ये जो हमने कंटेंट बनाए ये कैसे बनाए हैं? ये हमने बनाए हैं by identifying themes on the basis of the previous year questions which have come from 2013 till 2025. तो कोशिश ये रहेगी कि वो मेंटर रिवॉल्यूशन हो सके ताकि ऐसे को अप्रोच करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो सके. Content, answer writing, learning and test series. This is how it is a one-stop solution for this year mains examination. Translating what is in your mind onto paper is an important step. वो step हम करते हैं इस part में, where we tell you how to write and structure your answers. You know, instead of relying on your gut feel या एक superficial generic understanding, you have a more nuanced understanding of various social issues that are confronting our society. अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब बस फोकस वाले जो टॉपिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी में उनको देख लेना, उनको पढ़ लेना एंड यू विल बी सेट. क्योंकि लोगों का ये माइंडसेट है कि यहाँ नंबर नहीं आते. Create that differential here. Right. Get those extra 15-20 marks here. मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर लेट्स से AIR4 या AIR21 या फिर AIR27 जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे, अगर वो पेपर लिख रहे होते तो वो क्या लिखते इस आंसर में. So in this course, whoever is teaching you is either interview appeared or selected. In short, everyone who teaches you has cleared the mains exam and in most cases has cleared the mains exam multiple times. If you take this course which is MMP Plus 2026 for this year's mains but आपका prelims clear नहीं होता है, at no extra cost we'll migrate you for MMP Plus 2027 which is the course for next year. Hello and welcome to Sarthi IAS. I'm Dr. Shivan. The UPSC process is becoming random and we must acquire a backup plan or a marketable skill if we wish to stay here, especially after 2 to 3 years. We've talked about this, but it is our responsibility and your responsibility to ensure कि जब हम mains देने जाएं, we make it our final mains, we give a wonderful attempt, and we put all the possible efforts that we can. For our end of this responsibility, this is the official launch of MMP Plus for Mains 2026. देखिए मेरी खुद की जर्नी में जब मैं 4th अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया था तो उसके बाद जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे वो बैकअप प्लान के साथ दिए थे, जॉब के साथ दिए थे. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. द लाइफ मस्ट गो ऑन. दिस इज द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ MMP प्लस प्रोग्राम. ये बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जून 2026 से. यहाँ पे जो टीचिंग लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी और जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम जहाँ से पिछले 5 से 6 सालों में हमने मोर देन 500 टॉपर्स देखे हैं, इंक्लूडिंग द वन हु इज स्टैंडिंग हियर. सर आई थिंक ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज जितनी मेहनत हम लोग मेंस में स्पेसिफिकली MMP प्लस में करते हैं उतनी हम कहीं नहीं करते. आई थिंक वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री टू गिव दिस मच इंपॉर्टेंस टू मेंस. और ये बात खुद ना बोल के प्लीज हियर दिस फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोर्स फ्रॉम द पास्ट ईयर्स. वरुण सर का लॉस देखा था तो सजल सर का टेम्पलेट्स वाला भी देखा था. While looking for it, I found Varun Jain sir's MMP Plus which was extremely good. I had taken PRP which started in November. So I took that holistically from very day one to the till last all the classes that took place. And then in mains I had taken answer writing that part with Shivan sir. Sir MMP Plus and this year I took Write Smart. आपकी जो गाइडेंस थी ना, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, उससे काफी हेल्प हुई सर. और आपने एक मॉडल आंसर दिया था इससे का मैंने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया था मेंस में. यस सर, आई वाज द स्टूडेंट ऑफ MMP प्लस. सर राइट मेंस ज्वाइन किया था अभी एंड उस यस सर राइट स्मार्ट में मेंस टेस्ट सीरीज में चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था. आपका एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक का कोर्स देखा एंड GS3 I was totally dependent on you so thank you so much sir. Sir GS3 especially internal security, agriculture, disaster management, how to write answers. So MMP Plus helped me a lot. That it was very good. It was very valuable during both my mains preparation and even currently during my interview preparation. I was enrolled in Sarthi's MMP Plus program, but then I remember that laws and the content provided by Varun sir
was a lifesaver. I was a part of Right Smart. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के तीन साल से कर रहा हूँ, लॉस 2 साल किया था, MMP भी हूँ, अच्छा था मतलब। Sarthi IS, I have been affiliated through Sajal Sir's mains test series as well as mentorship program. तो मैंने MMP का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था, उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का। I was part of the veteran test series in 2025 this year and also the interview guidance program. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination paper. टॉपर्स का फीडबैक तो आप सभी ने सुन लिया होगा. नाउ वी हैव 2 मेजर अनाउंसमेंट्स फॉर यू. फर्स्टली देखिए यार, हमें नहीं पता हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं. इवन आफ्टर लुकिंग एट द प्रोविजनल की कट ऑफ्स कैन गो अप एंड डाउन. इसका बर्डन, इस अनसर्टनिटी का बर्डन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए. सो व्हाट वी हैव डन हियर इज, इफ यू टेक दिस कोर्स विच इज MMP Plus 2026 फॉर दिस ईयर्स मीन्स, बट आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट we'll migrate you for MMP Plus 2027 which is the course for next year. ये चीज आप इजीली अवेल करा सकते हैं एंड देयर आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड. आप एक बार हमें बोलेंगे सर मुझे माइग्रेट कर दीजिए, हम विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट विल माइग्रेट यू टू दिस बैच. और इन 2 बैचेस में थोड़ा सा एक फर्क है. जो इस साल का मीन्स दे रहे हैं, सीधे टाइम इज वेरी लेस. अगर हम हर चीज की लाइव क्लास लेंगे तो लास्ट डे तक आपकी क्लास चलती रहेगी. तो हमने क्या सोचा कि जो कंटेंट वाला पार्ट है which you have to study on your own, we are recording that. That does not mean that these are previous lectures. ये सारे freshly recorded इसी साल के lectures हैं after looking at the current affairs that are happening. For instance, sir, in my first lecture of GS3, I have taught the economic survey of this year. So I'm just telling you ये सारे इस साल के lecture हैं in all subjects. However, जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है वो अगर हम आपको रिकॉर्डेड दे दें तो वो मैनेज नहीं हो पाता, बिकॉज उसमें एक हेजिटेशन होती है, एक रिलक्टेंस होती है कि मैं आंसर लिखना स्टार्ट कैसे करूं. तो राइट स्मार्ट और लॉज के सारे लेक्चर्स लाइव होंगे. GS 1, 2, 3, 4 एंड एसए का जो कंटेंट है दैट विल बी रिकॉर्डेड. इसमें भी एसए की जो वर्कशॉप्स हैं, जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए, जहां लाइव आना जरूरी है, वो पार्ट लाइव होगा. MMP Plus 2027 में जो नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम है उसमें सब कुछ लाइव होगा, बिकॉज देयर वी हैव द टाइम टिल December टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर मेंस. राइट. तो देखिए पर्पस सिंपल सा है, जहाँ पे कि हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो हम आपको रिकॉर्डेड दे देंगे, आप अपनी पेज पे देख सकते हैं. और जहाँ पे भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, वो हम लाइव करेंगे ताकि आपका इनर्शिया ब्रेक हो. एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे कि जो 2027 का बैच है ये लेट स्टार्ट नहीं हो रहा है. वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 25th of June. तो प्रीलिम्स का रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप 2026 के बैच में रहना चाहते हैं या 2027 के बैच में रहना चाहते हैं. आप अपने बेसिस पे उसमें विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट 2027 में माइग्रेट कर सकते हैं. द सेकेंड अनाउंसमेंट is the launch of MMP Plus offline. So last year bhi, a lot of students demanded that they wish to come offline to do answer writing because it creates an environment and atmosphere of answer writing. तो हमने क्या सोचा, we'll have something called MAP, which is Mains Answer Writing Program, which is nothing but MMP Plus offline. MMP Plus के जितने भी components हैं, lectures हो, answer writing हो, वो सब इस program के साथ same है, with one important difference, which is Write Smart के लिए जो मेरा आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव है, you can come offline and you can sit in front of me and write your answers there. 2 things here. Firstly, of course, in offline there are limited seats, so we have about 250 to 300 seats for this. Secondly, the migration thing that we talked about will not be possible for us to do here. Even I think ये बहुत ज़रूरी था. I remember last year जब आप Write Smart ले रहे थे तो कुछ स्टूडेंट का हमें मेल आया था कि सर एटलीस्ट 4 सीट हमारे शिविन सर के स्टूडियो में ही लगा दो और हम वहाँ बैठ के राइट स्मार्ट अटेंड कर लेंगे. तो ये जो एस्पिरेशन आपकी लास्ट ईयर थी उसको हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं. राइट. नाउ सर लेट्स टॉक ऑफ द फैकल्टी हु विल बी टीचिंग हियर. सारथी IAS की फिलॉसफी रही है कि क्रेडिबल होनी चाहिए फैकल्टी. जिस एग्जाम के लिए जो पढ़ा रहा है उसने वो एग्जाम क्लियर किया होना चाहिए. सो इन दिस कोर्स whoever is teaching you is either interview appeared or selected. In short, everyone who teaches you has cleared the means exam and in most cases has cleared the means exam multiple times. तो अब एक बार फैकल्टी देख लेते हैं. So GS4 के लिए we have Piyush Kumar sir who has produced 50 plus rankers in top 100. He will also be taking the essay part in this course. GS3, the complete GS3 with all its subjects including economics will be taught by me. GS2 के लिए we have M Puri sir who will be taking up polity, governance and social justice. And GS2 में जो IR का part है that will be taken by Varun sir. For GS1,
we have Himanshu Khatri sir, ex-IRS for history, Pallavi ma'am for geography, Pranay sir for sociology. अब 3 चीजें और बचती हैं. One is Write Smart. I, along with Piyush sir, will be covering Write Smart for this year. Second, live answer writing sessions जो वरुण sir करेंगे. And third, test series and उनकी mentorship, उनकी model answer की discussion, post-test analysis, all of that will be taken care of by Sajal sir, who has produced more than 600 rankers in his career. So this is how MMP Plus will be a one-stop solution, जहाँ पे हम आपको कंटेंट कवर कराने वाले हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिखाने वाले हैं, उसके बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं. तो कंटेंट, आंसर राइटिंग लर्निंग एंड टेस्ट सीरीज, दिस इज हाउ इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन. राइट. तो सर मेंस का प्रोसेस सिंपल है. पहले मुझे अच्छा कंटेंट पढ़ना है. प्रीलिम्स कंटेंट और मेंस कंटेंट में इवन फॉर द सेम सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फर्क होता है. कंटेंट फॉर द मेंस इज सपोज्ड टू बी एनालिटिकल, इन डेप्थ एंड प्रॉपरली ब्रॉड. सर ये चीज़ हमने इस बार प्रीलिम्स में भी देख ली कि बेटर कंटेंट पढ़ने से कुछ रिजल्ट तो मिलता ही है. एंड दैट इज व्हाट वी एस्पायर टू डू हियर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ मेंस जीएस, एसए, GS1, GS2, GS3, GS4. वी विल गिव यू स्पेशलाइज्ड मेंस कंटेंट. अब सर हमने कंटेंट तो पढ़ लिया, हाउ डू वी गेट इट ऑन पेपर? अगर कंटेंट पढ़ने के बाद सीधा टेस्ट सीरीज लिखने जाते हैं तो हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन लिखे जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन लिखे जाते हैं 3 घंटे में. बिकॉज ट्रांसलेटिंग व्हाट इज इन योर माइंड ऑन टू पेपर इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. वो स्टेप हम करते हैं इस पार्ट में, where we tell you how to write and structure your answers. इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं. पहला है राइट स्मार्ट. राइट स्मार्ट में आई विल सिट एंड राइट 300 previous year questions with you for GS1, GS2 and GS3. And Piyush sir will write previous year questions with you for ethics and essay. यहाँ हमने कुछ 15 approaches develop की हैं और इन approaches के through we ensure that what you are thinking, you think better, and whatever is your thinking actually reflects on paper. Along with this, we also have live answer writing sessions here. लाइव आंसर राइटिंग सेशन में हम क्या करने वाले हैं? देखिए, राइट स्मार्ट में आपने आंसर राइटिंग करनी सीखी है. जो न्यू टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, वो सर ने आपको सिखा दिए हैं और PYQ भी आपने कवर कर लिए हैं. अब लॉज में बारी है नए क्वेश्चन लिखने की. एक सेशन में 5 क्वेश्चन हम लिखेंगे, 3 10 मार्कर और 2 15 मार्कर. यहाँ पे मैं आऊंगा क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन की डिमांड आपको समझाऊंगा, कौन सा टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं ये बताऊंगा. उसके बाद यहाँ पे टाइम चालू होगा. एक 10 मार्कर में मैं आपको दूंगा 7 मिनट और एक 15 मार्कर में मैं आपको दूंगा 11 मिनट. इन दैट टाइम यू विल राइट लाइव आंसर इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? तो जब आप लाइव सामने लिखेंगे, टाइमर सामने चल रहा होगा, एक कॉम्पिटिटिव माहौल होगा, तो वो इनर्शिया ब्रेक होगा. देखिए, एक चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है इस पूरी मेंस की प्रिपरेशन में, ये जो बीच वाला स्टेप आपको दिख रहा है ना, आंसर राइटिंग, जहाँ पे हमने राइट स्मार्ट और लॉज इंटीग्रेट किया हुआ है, ये एक यूनिक स्टेप है. मेरे टाइम में जब प्रिपरेशन होती थी मेंस की, समवेयर कई बार कंटेंट भी ठीक ठाक मिल जाता था, जैसे हमारे टाइम में एमपुरी सर भी पढ़ाते थे, राइट? लेकिन ये स्टेप कभी नहीं मिलता था. आप क्या करते थे? कंटेंट के बाद सीधा टेस्ट सीरीज लिखने जाते थे. सीधा टेस्ट सीरीज आप बेसिक लेवल पे सोचो, अगर आप टेस्ट सीरीज खुद लिखने जा रहे हो, आपको किसी ने बताया नहीं है कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है, तो क्या करोगे? आप खुद माथा मारोगे वहां पे, यार, है ना? जैसे मेरे साथ क्या होता था, जैसा शिविन सर ने स्टार्टिंग में बोला कि टेस्ट में 4 या 5 क्वेश्चन ही लिखे जाते थे पहले टेस्ट में. तो उससे बेटर ये है, टेस्ट सीरीज लिखने से पहले आप आंसर राइटिंग सीख लो इन राइट स्मार्ट एंड लॉज, उसके बाद आप टेस्ट लिखो. सर इस सारी बात को एक लाइन में कहूँ, I would not have gotten selected in 2022 without laws, and I'm very glad I found you at that time. अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की. मैंने कंटेंट तो सीख लिया, मैंने आंसर को स्ट्रक्चर करना भी सीख लिया. दी थर्ड थिंग इज टाइम. वहां पर 3 घंटे में मुझे सारे आंसर्स कंप्लीट करने हैं. 5 क्वेश्चन हो सकता है मैं टाइम में लिख रहा हूँ, बट 20 क्वेश्चन क्या मैं टाइम में लिख पाता हूँ? दैट इज द थर्ड स्टेप, एंड फॉर दैट वी हैव इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज एज वेल दिस ईयर विद MMP Plus. So all the 3 steps, good scale of reading, speed of reading, structure of writing the answer, and speed of actually putting it into tests, we have done in MMP Plus. Now the third step is test series. मैंने content तो सीख लिया, मैंने आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर भी सीख लिया, बट क्या मैं 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहा हूं? Am I able to complete the paper in time? And that can only be done through practice, through our tests. अब मैंने क्या देखा है सर कि टेस्ट सीरीज में जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि रैंडमली इवैल्यूएट हो गई. 4 out of 10 गुड आंसर, 3 out of 10 बैड आंसर. क्यों गुड या क्यों बैड,
वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है इन आवर टेस्ट सीरीज। आप जिस भी इवैल्यूएटर से अपनी कॉपी इवैल्यूएट कराएंगे, you have the option of going for one-on-one live evaluation. Zoom calls के through you can sit in front of them in a video call and they will tell you कि सर अगर आपको यहाँ पर 5 नंबर मिले हैं तो क्यों मिले हैं, कम नंबर मिले हैं तो क्यों मिले हैं, and what are the improvements that you make. So the 3 things that are required for means: the scale of reading through the content, the structure of answering through Write Smart and Laws, and the speed of answering through test series we have handled here. And this is why it is a true one-stop solution for the mains exam. So like I said, content, answer structuring, as well as test series, all of it in one place. Now let's talk about all the faculties who will be teaching in this course. Detail में बात करते हैं कि वो अपना subject कैसे cover करने वाले हैं. So first, let us talk about GS4. Ethics, sir, I think has become that area where you have to score high in this exam. And Piyush sir has been delivering that year on year. So let's hear it from Piyush sir on what is the approach he will follow in MMP+. तो दोस्तों अगर हम एथिक्स की बात करें तो एंटायर थ्योरी का जो कवरेज है वो 11 रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू हम कर रहे हैं, जिसमें फोकस होगा टू डेवलप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्योंकि जब तक हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम लिंक नहीं कर पाएंगे एथिक्स के सिलेबस से, तो उस पर काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की, जिसमें आपको 3 राइट स्मार्ट के सेशंस होंगे सेक्शन ए में और 3 सेशन होंगे केस स्टडीज में। तो जो वैल्यू एडिशन है वो स्प्लिट है, कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पे होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होगा, जिसमें करंट अफेयर के एग्जांपल्स होंगे। उसके अलावा अगर हम आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स की बात करें, क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है, डिफरेंट पार्ट्स में कैसे लगाना है, फिर उसमें जो सिलेबस सेंटर लिंकेज है उस पर कैसे काम करना है, ये सब हम आंसर राइटिंग सेशंस में साथ साथ करेंगे। पीवाईक्यूज यहाँ भी कवर्ड है, साइमल्टेनियसली मैंने पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, और जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तब तो हम एक्चुअल में भी देखेंगे कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ, और जब आंसर राइटिंग वाले पार्ट पे आएंगे, दैट इज 3 सेक्शन ए और 3 जो केस स्टडी के सेशंस होंगे राइट स्मार्ट के, वहां पे हम एक्चुअल एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो मोटा मोटा पीवाईक्यू थीम्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग। माइक्रो डायग्राम्स भी आई विल बी गिविंग यू, सो दैट कई बार टाइम क्रंच आ जाता है तो कम समय में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे एग्जामिनर को दे पाए, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप इस चीज को जब फॉलो करेंगे, सो यू विल गेट टू सी कि आपके जो एथिक्स के आंसर्स हैं वो कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। अगर यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन ने कोई एक ऐसा पेपर है जिसने बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम किल किया है आईएएस बनने का, तो वो है एसए का पेपर। मार्क्स में वेरिएशन बढ़ता जा रहा है, कोई 70s में स्कोर कर रहा है तो कोई 130s में स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीयूष सर विल बी कवरिंग एसए। ही विल हेल्प यू कि फिलोसफिकल एसए कैसे लिखे जा सकते हैं, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। तो नाउ लेट्स हियर आउट फ्रॉम द पीयूष सर कि किस तरीके से वो एसए कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर एसए की बात करें तो एसए में ये बात ध्यान देने वाली है कि एसए केवल कंटेंट से नहीं होता है। कई बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि हम कंटेंट हमारा बहुत अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छा एसे लिख लेंगे। अगर आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन को देखें तो क्या है कीवर्ड, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, टू राइट प्रिसाइसली, है ना। तो काफी ज्यादा फोकस है राइटिंग स्किल्स पर, है ना, टू डेवलप आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, कि आप अपने जो आइडियाज है उनको स्ट्रक्चर करके लिखें। इसीलिए 6 वर्कशॉप हम करेंगे। इस 6 वर्कशॉप में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल थीम्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन पर्टिकुलर एसेज को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते थे, ऐसे हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते थे। तो ऐसे राइटिंग के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। ये क्लासेस नहीं है, है ना, ये जो लिखा हुआ है लाइव क्लासेस, ये क्लासेस से ज्यादा वर्कशॉप हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप बैठे रहेंगे, साइमल्टेनियसली हम करेंगे। तो क्लासेस का जो नेचर है ना वो वर्कशॉप का है कि हम साइमल्टेनियसली खुद करके चीज सीखेंगे। ऐसे कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको ज्ञान दे दूं एकदम और आप पूरा कर लें। इट हैज टू बी डन साइमल्टेनियसली, ताकि हम अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक थिंकर आते हैं, आई थिंक टेलर, वो ये बोलते हैं कि मेंटर रिवॉल्यूशन होना चाहिए। तो कोशिश ये रहेगी कि वो मेंटर रिवॉल्यूशन हो सके, ताकि ऐसे को अप्रोच करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो सके, कि ऐसे को तोड़ना कैसे है, डिफरेंट डायमेंशंस में खोलना कैसे है, ताकि ऐसा ना हो कि हम नैरो इंटरप्रिटेशन अपने ऐसे का एग्जाम में करके आ जाएं। तो जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो हम 6 वर्कशॉप्स के थ्रू करेंगे। और टारगेटेड राइटिंग इंप्रूवमेंट मतलब कंटिन्यूटी को कैसे डेवलप करेंगे, या अच्छे हाई नोट पे हम अपने ऐसे को कैसे एंड कर सकते हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी क्लासेस में। नाउ एथिक्स एंड एसए आर ओवर। अनदर इंपॉर्टेंट पेपर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन इज जीएस3। तो सर यू विल बी टेकिंग द कंप्लीट जीएस3। प्लीज टेल आवर स्टूडेंट कि कैसे कवर करेंगे हम। सर फर्स्टली जीएस3 बहुत स्कैटर्ड सब्जेक्ट है, in the sense that there is economics, agriculture, science and tech, environment, disaster management and security. और सर इस कैटरिंग में आपस में कोई लिंक भी नहीं है। सो वी नीड अ एनालिटिकल अप्रोच एंड वी नीड अ क्रिस्प अप्रोच।
1.5 से 2 हफ्ते मुझे आपके चाहिए पूरा GS3 कवर करने के लिए। ये मेरी गारंटी है कि उन नोट्स के बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। द प्रूफ इज इन द पुडिंग। लास्ट ईयर सर आई वाज एबल टू हिट 19 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। 3 साल से सर मैं GS3 पढ़ा रहा हूँ एंड 3 साल से गॉड हैज बीन वेरी काइंड दैट द टॉपर ऑफ GS3 हैज बीन द स्टूडेंट ऑफ दिस वेरी कोर्स। सेकेंडली सर हमने ये देख लिया कि एनालिटिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ये बोलना बहुत आसान है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। तो इसके लिए सर एक सिंपल सोल्यूशन है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे एंड टू एंड पेज टू पेज हम कवर करते हैं। गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, एनालिटिकल है, एंड वंस दैट इज डन वी नॉट ओनली अंडरस्टैंड पॉइंट्स एंड टॉपिक्स, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट थिंक्स, राइट, एंड देन वी कैन पुट इट ऑन पेपर। राइट। वन थिंग दैट कम टू माई माइंड विद रिस्पेक्ट टू GS3 इज काफी सारे लोगों को लगता है कि पिछले 4-5 साल में UPSC ने GS3 में नंबर कम दिए हैं, राइट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? Sir, I don't think we've all seen after the prelims there's anything we can change about what UPSC does. But एक यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा that I don't agree with this analysis, sir. Simply because the average is lower. Doesn't mean number नहीं आते. A average student in GS3 is scoring 60. A good student like Pradeep Bhai last year who was a student of GS3 scored 109. ये सेम चीज जब GS2 पे जाती है तो एक डिसेंट स्टूडेंट 100 मार्क्स भी ला रहा है और कोई 130 मार्क्स भी ला रहा है। तो जो गैप है, जो डिफरेंशियल है वो सेम है। यू माइट सी ऑन पेपर कि यार मेरे GS2 में तो आए 110 और GS3 में आए मेरे 90, बट एक्चुअली आपके GS3 में मार्क्स बहुत अच्छे हैं और GS2 में मार्क्स थोड़े से कम है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। ये हमने प्रीलिम्स में भी देखा, टफ पेपर मेंट कि यार अब कट ऑफ लो है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। और वो डिफरेंशियल क्रिएट करना सर यहाँ उतना ही पॉसिबल है जहाँ किसी और पेपर में। एंड क्योंकि लोगों का ये माइंडसेट है कि यहाँ नंबर नहीं आते, क्रिएट दैट डिफरेंशियल हियर, गेट दोज एक्स्ट्रा 15-20 मार्क्स हियर जो लोग GS2 में चेज करते रहेंगे। राइट, एंड लॉजिकल बात भी है बिकॉज एग्जाम कॉम्पिटिटिव है तो आपके एब्सोल्यूट मार्क्स से ज्यादा रिलेटिव मार्क्स मैटर करते हैं। राइट सर। लेट अस नाउ कम टू GS2। GS2 में पहली बात, इट इज नॉट ओनली पॉलिटी। GS2 में 4 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR। एंड अगर आपने पॉलिटी बहुत अच्छा भी पढ़ लिया तो हार्डली आपके 10 ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, द हाफ ऑफ पेपर विल बी लेफ्ट। तो पहला तो हमारा ये कमिटमेंट है दैट GS2 विल बी कवर्ड इन इट्स एंटायरिटी। इसके लिए सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कवर्ड बाय M. Puri sir. Let's hear from sir on what his approach will be in this course. Hi friends, this is M. Puri, instructor and guide for polity, governance, social justice at Sarthi platform. Right. Now the prelim was a bit of a shocker, but I believe that those people who had prepared hard, prepared really well for this paper also, we are very sure the cutoff marks are going to come down, and those who have worked hard should absolutely now start preparing for the mains part. Right. So as far as the mains part is concerned, we know that every year Sarthi organizes a short-term MM Plus program, and of which I am also a part with respect to GS paper 2, that is this year's 2026 mains. Fine. अच्छा बेटा, अब आपके जो GS पेपर 2 के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हैं, आपको पता ही है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये तीनों पार्ट्स मैं लूंगा, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 75 to 80% ऑफ द सिलेबस। और जो IR है आपका, ये 20 से 25% आता है, ये वरुण सर लेंगे। Right. और जो total number of classes we'll take to complete this MMP Plus program for GS paper 2 would be roughly around minimum 20, maximum 25 classes, which covers all the 4 aspects. और एक और छोटी चीज बेटा, GS पेपर 2 के नाम पे जो मेंस प्रोग्राम्स मोस्टली होते हैं ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता बाय नेम, बट जो मोस्टली प्रोग्राम्स होते हैं GS पेपर 2 के, वो ज्यादातर सेंट्रिक, दे आर लार्जली सेंटर्ड अराउंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस पार्ट को वो करवाते तो हैं, बट वो इतना एडिक्वेट ही नहीं करवाते गवर्नेंस को, और इसको तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। Correct. So our focus will be on putting adequate focus, almost equal focus on all parts of the syllabus. और कई बार तो कुछ लोग तो IR को भी बहुत जनरली करवा देते हैं। तो we'll be focusing on all these 4 parts, giving them adequate proportionate importance as is required, as per the requirements of the paper, and none of these topics are going to be ignored. Right. That's first thing. अब इसके बाद what will be the focus area? Obviously ये पहला फोकस एरिया तो हमेशा रहता ही है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जो भी कंसेप्चुअल फॉर्मेशंस है हमारे सब्जेक्ट के अंदर, यार कॉन्सेप्ट्स तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल ओवर हियर, जैसे अगर आपको यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरियस रिट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 टू 226 और आर्टिकल 32 का कोरिलेशन क्या है, 226, 32 एंड आर्टिकल 142
which gives the Supreme Court the power to pass any order, decision or judgment to do complete justice in any particular matter. उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो इस तरह की जो conceptual clarity है ये स्टूडेंट को थोड़ी कम रहती है, and that is why they sometimes make mistakes while writing the answer. So clarity of concepts तो हो गए होगा, plus we'll be focusing on issues, all kinds of issues which are relevant to and the applied aspect of polity and governance. Issues तो है ही है, applied aspect, not just purely polity and governance, right? तो issues के अंदर जो immediately current है बेटा वो तो करने हैं आपको, और contemporary issues भी करने हैं. What are contemporary issues? जो शायद हमेशा ही करंट होते हैं, लेकिन किसी एक साल में ना उसके रेलिवेंट, उसके मुतालिक कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है. जैसे यूथनेशिया है, बहुत साल से रेलिवेंट है. यूथनेशिया इज समथिंग व्हिच इज अ बॉइलिंग इशू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट, और बहुत सालों से है, लेकिन इस साल एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, तो वो एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक है जो इस साल करंट भी बन गया है. तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स लाइक यूथनेशिया लिंक्ड विद द करंट डेवलपमेंट्स. एक तो है ना प्योरली करंट में तो आ जाता है जैसे आपका 16 फाइनेंस कमीशन, ये तो प्योरली करंट हो गया आपका, ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन, या फिर जो आपकी SIR की एक्सरसाइज हो रही है अंडर द एजेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये भी प्योरली करंट हो गया आपका, राइट. बट कंटेम्प्रेरी वो होते हैं जिसकी रिलेवेंस तो हर साल होती है, लेकिन वो किसी साल थोड़ी सी उनकी रिलेवेंस ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सम रेलिवेंट कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. सो इश्यूज पे होगा. और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिसपे मैं फोकस करूंगा इज एनालिटिकल डेप्थ. अब बेटा इस टर्म को ना बहुत लोग they use it very casually in the sense almost like बस बोलना ही है analytical depth. देखो बेटा how do you get marks in any paper, forget GS paper. बड़ी एलिमेंट्री सी बात है बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना आपके पास मेंस का, पहले चाहे वो GS पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इवन इन योर ऑप्शनल पेपर, more the points of analysis, more the marks. ये बड़ा सीधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. आपने क्या किया, आपके किसी आंसर क्वेश्चन को लेके आपके दिमाग में 2 पॉइंट्स हैं और उसी को रिपीट करी जा रहे हो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट स्टेटमेंट्स रीफ्रेज करी जा रहे हो उसको, और इंट्रोडक्शन भी वही है, कंक्लूजन भी वही है. एग्जामिनर इज नॉट अ फूल है, ठीक है. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, मोर द पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस इन योर आंसर, ये दिस थ्योरी अप्लाइज टू एवरीथिंग, वेदर you can even go to the extent of applying it to your essay paper also. You are appearing in GS paper 1, 2, 3, 4, or for that matter in your optional paper also. More the points of analysis, more the marks. So analytical depth means your understanding of the subject in terms of its depth must be much greater than that of the other students, your competitors. So the focus would be on generating more points. और एक important चीज, this is the most important, how to interpret the question. बेटा मैं टेस्ट सीरीज करता था जब, तो उस समय मेरा एक बड़ा स्टैंडर्ड सा रिमार्क होता था जो मैं बच्चों को देता था जब उनके पेपर इवैल्यूएट करता. क्वेश्चन है, उन्होंने आंसर लिखा है, तो कई आंसर्स के नीचे मेरा एक रिमार्क होता था, प्लीज आंसर द क्वेश्चन. मतलब सवाल की डिमांड कुछ और है, आप सवाल को इंटरप्रेट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ लिख तो रहे हो लेकिन कम से कम उस सवाल का वो जवाब नहीं, ठीक है. सो हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन करेक्टली, एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन वन थिंग, देयर आर नो जनरल क्वेश्चंस. कई बार होता है ना, मेन से बाहर आ रहे होते हैं, पेपर देके स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, GS2 का स्पेशली जब देके आते हैं, सब बड़ा जनरल क्वेश्चन, द पेपर वाज वेरी जनरल. There is nothing general in any question. Every question requires crisp, distinct points of analysis. Sir, ये general question ही तो है that what is the significance of an effective system of local self-government? इसमें general क्या है भाई? क्या सभी शुरू कर रहे हैं महात्मा गांधी का ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज, उसी को बस उसी के अंदर कुछ 2-4 पॉइंट्स डाल के फिर महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज उसी से कंक्लूड कर रहे हैं. ये कोई पॉइंट्स हैं आपके? Corruption is not just something that adversely affects the administrative system, but eats into the social fabric of the nation. It's a so general question. बिल्कुल भी नहीं. There is nothing called a general question. Every question demands specific points of analysis. And again, what I said earlier, more the points, more the marks you get. ठीक है. Interpreting the question, if you're not interpreting it correctly, उसका मैं example भी दूंगा आपको when I'll be teaching you कि what kind of questions were so badly interpreted by students in the previous years. Right. So if you interpret the question correctly, that is half the battle here. अगर सवाल ठीक से इंटरप्रेट कर लिया, that is half the battle. Okay? बाकी फिर लिखना है. आगे चलिए. Yes, it would be syllabus centric. Yes, it would be exam centric. But most importantly, it would be marks centric. And the target should be minimum this much. That's my goal for you. Should be your goal for yourself. If you do it properly, I can assure you, you can even reach 135, 140 in paper 2.
See you in GS Paper 2 MMP Plus program. Thank you. Now the fourth part of GS2 is international relations. तो सर मैं आपसे पूछता हूँ कि IR वाला पार्ट हम इस कोर्स में कैसे कवर करने वाले हैं? अगेन देयर आर टू थिंग्स अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन. फर्स्ट, हमें IR पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है. वर्ल्ड हिस्ट्री GS1 में आता है. व्हेन वी टॉक अबाउट GS2 तो हमें IR की कॉन्टेम्प्रेरी थीम्स कवर करनी है, ना कि टाइमलाइन याद करनी है. तो मेरा फोकस इस चीज पे रहेगा जो कॉन्टेम्प्रेरी थीम्स हैं. फॉर एग्जांपल US ईरान कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है तो हमें ये नहीं जानना है कि 1967 में क्या हुआ था ईरान में, है ना. हमें ये जानना है कि जो कॉन्टेम्प्रेरी क्लैशेस हैं उसका क्या जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है, हाउ इट इज गाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड चाइना, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो उसे, हाउ इट इज गाइडिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी. तो जितने भी कॉन्टेम्प्रेरी थीम्स हैं उनको हम एनालिटिकल वे में पढ़ेंगे. एंड द सेकंड थिंग जो मुझे लगता है IR में इंपॉर्टेंट होती जा रही है, देखिए UPSC मेंस एग्जामिनेशन ना अब थोड़ा स्पेशलाइज होता जा रहा है. Right. अगर हम 10 साल पहले की बात करते तो आप जेनरिक आंसर लिख के शायद मार्क्स फेच कर पाते थे. Right. अभी मैंने पिछले साल के जब टॉपर्स के मार्क्स देखे, हम टॉपर्स से मिले कि किस टाइप के आप आंसर लिख के आते हो, तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोग कीवर्ड्स अच्छे ड्रॉप कर रहे हैं, है ना. Right. तो व्हाट आई विल डू इन IR इज कि क्योंकि मेरा PSIR ऑप्शनल रहा है तो वहां के जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं जो फिट हो सकते हैं GS में, उनके कीवर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा ताकि वो आप अपने आंसर में ड्रॉप कर पाएं और थोड़ा 1 और 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा एज क्रिएट कर पाएं. राइट सर, आई थिंक दैट विल हेल्प एवरीबडी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रटने का नहीं है IR, एनालिसिस का है, बट इट हैज टू बी डन इन अ क्रिस्प मैनर. राइट. अब बात करते हैं GS1 की. फर्स्टली वी अंडरस्टैंड कि आपने प्रीलिम्स के लिए GS1 पढ़ा हुआ है. सो आवर फोकस, ऑल्दो वी विल कवर ऑल ऑफ इट, आवर फोकस विल बी द एरियाज दैट वी जनरली इग्नोर. एंशिएंट मेडिवल इग्नोर करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस इग्नोर करते हैं, ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट कम पढ़ते हैं, सोसाइटी जनरली कम पढ़ते हैं. सो वी विल फोकस ऑन दैट पार्ट मोर and let us hear this from the respective teachers of the subjects, Pranay sir, Pallavi ma'am and Himanshu sir. Myself Himanshu Khatri, ex-IRS 2014 batch, and MMP के अंदर कहता है I'll be taking 4 subjects, right? That is your ancient medieval art and culture जिसको हम AMAC बोलते हैं, post consolidation India या फिर post independence India, world history and modern Indian history. ठीक है. इन सब्जेक्ट्स को एक्चुअली जब हमने कोर्स ये डिज़ाइन किया तो ये चीज़ सोची कि इसमें कुछ एक पैटर्न्स हम नोटिस करते हैं. तो 2 कैटेगरीज एक्चुअली निकल के आई. एक तो हो जाता है आपका पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और साथ में उसके आपके वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड दूसरा हो जाता है AMAC और MIH. डिफरेंस एक्चुअली ये होता है कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं AMAC को और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को वो प्रीलिम्स के लिए भी उसको प्रिपेयर करते हैं. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेस सा बना हुआ होता है. तो जब एज अ टीचर मैं MMP के अंदर अपना कोर्स डिज़ाइन कर रहा था कि किस तरीके से डिलीवर करना चाहिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात का एक ध्यान में रखा गया कि बच्चे को एक ऐसा ना लगे कि वो फाउंडेशन एक्चुअली पढ़ रहा है. ठीक है, क्योंकि उसका टारगेट है मेंस. ठीक है, हमारे गोल्स डिफाइंड है. ही शुड बी एबल टू, शी शुड बी एबल टू आंसर एक हाई लेवल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, एंड सिंप्लिसिटी के साथ. ठीक है. दूसरी कैटेगरी आती है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की. अब उन दोनों केसेस में क्या है कि यूजुअली बच्चे जो हैं उन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं. ठीक है, प्रीलिम्स के टाइम पे यूजुअली नहीं पढ़ते हैं उनको, एंड अब टाइम काफ़ी कम है एंड टोटल ब्लैंक स्लेट है बच्चा और उसको कहीं ना कहीं ये दोनों सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करना है. तो जब इसमें मैंने कोर्स डिज़ाइन किया तो मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा, आई ट्राई टू एम्पथाइज विद द स्टूडेंट्स. एंड तो ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया की और वर्ल्ड हिस्ट्री की, इनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ आपको एक पार्शियल फील आएगी, 30% 40% एक 30% एक फील आएगी आपको कि जैसे ज़ीरो से चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे केसेस में, है ना. तो लाइक फाउंडेशन वाली थोड़ी सेमी फील आएगी, क्योंकि 100% फाउंडेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री खुद में एक सब्जेक्ट है, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया खुद में एक सब्जेक्ट है ना. आप बुक देखते हैं तो इंडिया आफ्टर गांधी इतनी मोटी किताब है, नॉर्मन नोवे है वर्ल्ड हिस्ट्री में, आचार्य अर्जुन देव जी की किताब है, तो कंटेंट तो पूरा है, बट तो किस तरीके से एक्चुअली वही प्रॉब्लम थी. एंड आई फील दैट आई हैव क्रैक्ड इट कि किस तरीके से वो रास्ता निकलना चाहिए. ठीक है, तो पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, स्टूडेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं है. ठीक है, तो कोशिश करी है कि स्टूडेंट विल फील कंफर्टेबल विद इट. ठीक है, एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड AMAC उसमें स्टूडेंट का थोड़ा बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है डायरेक्टली मतलब जैसे ही ग्राउंड हिट करेंगे वैसे ही हम उस पर मतलब कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हो. ठीक है, तो ये एक्चुअली एंगल रहेगा. दूसरी चीज़ कहते हैं जो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारा मेथडोलॉजी क्या है. ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है.
ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? स्टूडेंट को एक तो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर वीडियोज़ होंगी, ठीक है। उन लेक्चर वीडियोज़ को जिन नोट्स के आधार पे बनाया गया है, ठीक है, वो जो स्पेशली क्यूरेटेड नोट्स हैं वो भी स्टूडेंट्स को एक्चुअली मिलेंगे, ठीक है। अब वो नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होंगे, ठीक है, कि उसके अंदर एक पूरी किताब दे दी बच्चों को, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। और अगर बच्चा मुझे अपने 5 मिनट भी देता है तो मैं ये चाहूँगा कि उसको ये ना लगे कि मैंने उसका टाइम वेस्ट किया, ठीक है। मतलब कम से कम मेरी कोशिश जो है ये बहुत ज़्यादा रही है ये कोर्स को डिज़ाइन करने में, राइट। तो ये जो हमने कंटेंट बनाए, ये कैसे बनाए हैं? ये हमने बनाए हैं बाय आइडेंटिफाइंग थीम्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच हैव कम फ्रॉम 2013 टिल 2025, राइट। तो थीम्स आइडेंटिफाई हमने करी हैं कि यूपीएससी किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करता है, कहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, कहाँ पे रिलेटिवली थोड़े से कम क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम द PYQ, FYQ, ठीक है। PYQ तो कोई भी जैसे पढ़ा सकता है, FYQ पे थोड़ा सा हमने फोकस है, भाई पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल थीम्स क्या हो सकते हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कोल्ड वॉर के ऊपर उन्होंने नहीं पूछा आज तक, तो शुरुआत में सोचा था नहीं इंक्लूड करूँ, बट लास्ट में एक जो है कोल्ड वॉर के ऊपर इंक्लूड किया, क्योंकि यूपीएससी कभी भी बाउंसर वगैरह दे सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक पोटेंशियल फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस किस आधार पे आ सकते हैं वो वाली थीम्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो थीम्स पूछी जा चुकी हैं उन पे, तो उन पे फोकस करते हुए अकॉर्डिंगली जो है वो कंटेंट बनाया गया है, जो कि आपको कंटेंट वो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक PDF फाइल्स, एंड उसी कंटेंट के इन सिंक आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो मिलेगी, डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे जो है मतलब एक जहाँ पे हमने कंटेंट वहीं लेक्चर में ही बिल्कुल डिस्कस किया है, तो वहाँ पे एक रेफरेंस कि देखो ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। एंड जहाँ पे जैसे आर्ट एंड कल्चर टाइप टॉपिक है, तो वहाँ पे एक डिटेल्ड आंसर्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का लिंगो वगैरह थोड़ा टफ होता है, तो स्टूडेंट को कंडेंस्ड फॉर्म में अगर मैं पोटेंशियल क्वेश्चंस के आंसर दूंगा तो वहाँ पे थोड़ा सा हेजी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी आपको उसके अंदर लेक्चर्स के अंदर आपको मिलेगा। एक आपको कंडेंस्ड फाइल मिलेगी ऑफ हाउ टू आंसर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आर्ट एंड कल्चर में हाउ टू आंसर द फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, राइट, उसका भी एक मिलेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का लिंगो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसमें आपको प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे पोटेंशियल फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस के भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी। जैसे आर्ट एंड कल्चर के अंदर 33 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टाइम एक दिन दे सकते हो, है ना। आजकल लोग मैराथन लेक्चर्स लेते हैं जहाँ पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार यूट्यूब पे कुछ चीज़ चल रहा है ना, तो स्टूडेंट्स उसको लाइक भी करते हैं। तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्लासेस, राइट, ऑफ 3 hours 3.5 hours ईच, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो 15 से 20 घंटे, बस इतना टाइम जो है पर सब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर आप उस टाइम को दोगे, मेरी कोशिश 100% ये रहेगी कि आपका टाइम बिल्कुल भी जो है बर्बाद ना हो, ठीक है। तो आप उसको मैराथन फॉर्म में करना चाहते हैं, आप मैराथन फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो दैट विल बी द थिंग विच वील बी डूइंग इन AMAC, MIH, PCI and WH, right? So देखो, all the very very best, right? God bless you. So for GS1 Geography, जो मेंस का पर्सपेक्टिव है, मेंस में जो क्वेश्चंस हैं दे आर मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कंपेयर टू फिजिकल ज्योग्राफी। यस, फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा है कि क्वेश्चन लास्ट ईयर जैसे सुनामी पे क्वेश्चन आया था, प्रीवियसली क्लाउड बर्स्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिजिकल फिनोमेना पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, बट दे आर ऑफन इंटीग्रेटेड विथ उनका जो ह्यूमन ज्योग्राफी एस्पेक्ट्स है, जैसे ह्यूमंस पे क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, डेथ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी पे बहुत एक्स्ट्रा एम्फेसिस करता है यूपीएससी इन द मेंस एग्जाम। ऑल्सो जो आपको आंसर्स देने रहते हैं दे आर एक्सपेक्टेड इन अ मोर मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, कि बस आप एक पर्सपेक्टिव से, एक लेंस से, कि बस ज्योग्राफी के लेंस से या बस डिजास्टर के लेंस से आप किसी टॉपिक का एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एक बैलेंस्ड आंसर देना रहता है इन केस ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम ज्योग्राफी इन GS1। सो यहाँ पे जो ज्योग्राफी की क्लासेस रहेंगी, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दे हैव बीन डिजाइंड इन सच अ मैनर कि कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है ऐसा, वो आप सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट किया हुआ है। जैसे लास्ट ईयर इंडिया ने अर्थक्वेक जोनेशन अपना डिक्लेयर किया था, न्यू अर्थक्वेक जोनेशन मैप क्रिएट हुआ था,
तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नीति आयोग की रिसेंटली रिसोर्स एफिशिएंसी पे 2025 में रिसोर्स एफिशिएंसी पे एक रिपोर्ट आई थी, तो उसको यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है इन केस ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस, राइट। सो थोड़ा करंट इंटीग्रेशन भी है, प्लस जो स्टैटिक वाले पार्ट्स हैं उनको मोर ऑफ एनालिटिकल परव्यू से हमने यहाँ पे कवर किया है। ऑल्सो अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है देन देर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनके आगे मैंने इन द नोट्स फोकस लिखवाया हुआ है। सो इफ यू फील आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बाकी टॉपिक्स को स्किप करके उन फोकस वाले टॉपिक्स पे एम्फसाइज कर सकते हो इन फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में जो जो सिलेबस है फॉर मेंस वो प्रीलिम्स और मेंस का बिल्कुल सेम सिलेबस है, तो प्री में भी वो चीजें पढ़नी है, मेंस में भी पढ़नी। सो कुछ बच्चे हैं जिनका हो सकता है प्रीलिम्स या फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, सो दैट्स वाई उन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है इन द नोट्स एंड द वीडियोस। बट अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब बस फोकस वाले जो टॉपिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी में उनको देख लेना, उनको पढ़ लेना एंड यू विल बी सेट। ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा आपको पढ़ना रहेगा बिकॉज ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एम्फेसिस रहता है इन द मेंस। प्रीलिम्स में उतने क्वेश्चंस ह्यूमन ज्योग्राफी से नहीं पूछे जाते, जैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन हो गया, इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हो गया, रिसोर्स एफिशिएंसी टाइप की चीज़ें हो गई, क्रिटिकल मिनरल्स, मिशन पे क्वेश्चन तो आया था प्रीलिम्स बट उसका एनालिटिकल पोर्शन हो गया, तो वो मेंस के लिए रिक्वायर्ड है। तो उनको अकॉर्डिंगली यहाँ पे MMP का जो आपको मॉड्यूल मिलेगा GS1 का, उसमें जो ज्योग्राफी है दैट हैज़ बीन कवर्ड इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, ताकि मेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणय अग्रवाल है, मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल का फैकल्टी हूँ। सारथी IAS के जो GS1 MMP कोर्स में जो GS1 में इंडियन सोसाइटी का पोर्शन है वो मैं लूँगा। इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड बट इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ द UPSC मेंस पेपर। कारण क्या है, हम क्या देख रहे हैं आज के समय में, डायरेक्टली कहीं ना कहीं 60 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली सोसाइटी रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। टिपिकल कैंडिडेट क्या होता है, वो घंटों बिताता है ज्योग्राफी पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में, और दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, बट सोसाइटी को ऑलमोस्ट बिना पढ़े चले जाता है। सो मेरा अटेम्प्ट क्या होगा कि इन अ स्पैन ऑफ अबाउट 10 लेक्चर्स या 20 से 25 घंटे के बीच में मैं आपको एक बहुत थरो ग्राउंडिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करूं ऑफ इंडियन सोसाइटी, सो दैट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन योर गट फील या एक सुपरफिशियल जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग, यू हैव अ मोर न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सोशल इश्यूज दैट आर कन्फ्रंटिंग आवर सोसाइटी। तो इसमें हम एक होलिस्टिक कवरेज करेंगे ऑन इश्यूज वेरीड एज स्पेसिफिक इश्यूज हैं हमारे सिलेबस में। GS में कास्ट है, ट्राइब्स है, विमेन की इश्यूज है, कुछ पॉपुलेशन इश्यूज है, राइट, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। तो इस तरह के हमारे 8, 9, 10 इश्यूज हैं जिनको हम अच्छे तरह से टैकल करेंगे। एक हमें क्या समझना है कि मेंस पेपर में GS में ना जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बदल रहा है। लेट्स से 8 to 10 years back questions were far more direct and far more should I say predictable or straightforward, परंतु increasingly questions थोड़े से मोर एनालिटिकल होते जा रहे हैं और ज़्यादा डायनामिक एंड ओपिनियन बेस्ड होते जा रहे हैं। आपको मैं अगर कॉन्क्रीट एग्जांपल दूं, कास्ट को लेके 2015 का सवाल है दैट यू हैव टू कंपेयर द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर ऑन द इशू ऑफ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, राइट। तो उन दोनों ने अपने इंडिपेंडेंस से पहले मुहिम की थी अनटचेबिलिटी को हटाने की, उन दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग थी, उनको कंपेयर करना है। पुरानी बात है, स्टैटिक बात है। परंतु 2023 में क्या क्वेश्चन पूछ रही है UPSC कि व्हाई इज कास्ट बोथ स्टैटिक एंड फ्लूइड। तो क्लियरली कास्ट कैसे बदल रही है आज के समय में, 21st सेंचुरी में कैसे हमें अफेक्ट कर रही है, ये हमें उसमें अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी। सो वी नीड टू डेवलप अ मोर न्यूआंस्ड एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज लाइक ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट और हाउ कास्ट is changing in today's times, friends. So I hope you will benefit from these very compact and information, knowledge and perspective packed sessions on Indian society and social issues. Thank you. So now the first part of the MMP Plus program, that is content, is over.
वंस यू आर डन विद द कंटेंट, अब अगला स्टेप आता है आंसर राइटिंग सीखना, नॉट टेस्ट सीरीज, वो लास्ट में आएगा। सबसे पहले हम आंसर राइटिंग अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए है राइट स्मार्ट। राइट स्मार्ट प्रोबेबली इज दैट एलिमेंट जो आपने बहुत सारे टॉपर से सुन लिया होगा, है ना। मैं शिविन सर आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा हम राइट स्मार्ट में ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतने सारे टॉपर्स ने राइट स्मार्ट का नाम लिया है पिछले कुछ सालों में? सर, इन वन लाइन, वी आर डेवलपिंग थिंकिंग इन अ स्मार्ट एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। आपने अगर एक भी आंसर आज तक लिखा है ना, यू वुड रियलाइज इट इज नॉट अबाउट राइटिंग फास्ट, इट इज अबाउट थिंकिंग फास्ट। अगर दिमाग में पॉइंट्स आ जाएं सर और टाइम से आ जाएं तो आंसर कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रक्चर भी ठीक होता है। बट कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है, यार ये पॉइंट तो ऊपर जाना चाहिए था, इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं वहीं अटक गए, बॉडी के पार्ट्स डिवाइड कैसे होंगे। तो जो वो थिंकिंग प्रोसेस है, एक क्वेश्चन को देखते ही 1 मिनट में उसको ब्रेक डाउन कर लेना दिमाग में, दैट इज द आइडिया। सर, अभी 2-3 दिन पहले ऑल इंडिया रैंक 7 से भी बात हो रही थी, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ राइट स्मार्ट, और उन्होंने भी यही बताया that from this course the 2 things that he learned, breaking down the question and thinking in templates, and that is exactly what we do. How do we do it? We do it through previous year questions. UPSC के ही क्वेश्चन उठाओ, 300 क्वेश्चन लेंगे, 100 GS1 के, 100 GS2 के, 100 GS3 के, and we'll repeat this process 300 times. मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और कहीं कहूंगा आप सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करोगे और इसमें पॉइंट्स कैसे जनरेट करोगे, फिर मैं बताऊंगा कि अगर मैं ये काम करता तो कैसे करता। And once we do that 300 times, then that process will be ingrained in your head. Similarly, for ethics and essay, Piyush Kumar sir will be doing this for GS4 and essay. He'll do the same thing, show you PYQs, ask you to brainstorm, and then tell you how he would have brainstormed it. इसके बाद सर आंसर राइटिंग का डर खत्म हो जाता है, बिल्कुल, और दिमाग में पॉइंट्स इमीडिएटली आने लगते हैं। बिल्कुल। सो वंस यू हैव लर्न द आंसर राइटिंग इन राइट स्मार्ट, अब नेक्स्ट फेज लॉजिकली क्या आता है कि हमने PYQ सीख लिए, हमने आंसर राइटिंग करना सीख लिया, बट यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में तो कुछ न्यू क्वेश्चन भी आएंगे जो ऑन द स्पॉट आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए आंसर राइटिंग में नेक्स्ट स्टेप आता है लाइव आंसर राइटिंग सेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपने आंसर राइटिंग सीखी है राइट स्मार्ट में, उन्हीं टेम्पलेट्स का एप्लीकेशन न्यू क्वेश्चन पे करेंगे। एज ए टोल्ड यू अर्लियर, एक सेशन में हम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, 3 10 मार्कर, 2 15 मार्कर। आप मेरे सामने बैठ के आंसर लिखेंगे, टाइमर चलेगा, तो एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा, और वहां पे हम लास्ट में मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे हम 30+ लाइव आंसर राइटिंग सेशन करेंगे, तो मोर देन 150 क्वेश्चन आप मेरे सामने यहाँ पे लाइव लिखने वाले हैं। राइट सर। सर, वंस पर्सन हैज लर्नड कंटेंट and they have structured this answer, they now come to test series. Now test series vertical here will be headed by Sajal sir. जैसे हमने आपको बताया, there is one-on-one mentorship. We ensure कि जो templates आप राइट स्मार्ट में सीखें वही templates लॉज में यूज हों और उन्हीं templates से मॉडल आंसर बने। कोई भी आपको 850-900 वर्ड का मॉडल आंसर नहीं मिलेगा। They will be strictly to the word limit and in the templates that we have recommended. और एक और चीज सर मैंने पर्सनली ऐड करी है टेस्ट सीरीज में इस बार, कि हर क्वेश्चन के लिए 2 टेम्पलेट की अप्रोचेस दी जाए, आर सजेस्टेड अप्रोच एंड एन अल्टरनेटिव आल्सो, बिकॉज नॉट एवरीबडी विल थिंक द सेम। तो वो डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग इंपॉर्टेंट है कि आप इसको स्टेपल से भी लिख सकते थे, लाइफ साइकिल से भी लिख सकते थे, स्टेक होल्डर्स से भी लिख सकते थे। नाउ लेट अस हियर फ्रॉम सजल सर ऑन हिज इनपुट्स फॉर द टेस्ट सीरीज for MMP Plus 2026. So I will be the head of the mentorship in the MMP program. So basically जो यहाँ पे mentorship होगी इस प्रोग्राम में वो 3-4 लेवल पे होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होगी कि दे विल बी ग्रुप सेशंस, ठीक है। एवरी 14 days दे विल बी ग्रुप सेशन वेयर दे विल बी इंटरव्यू गिवन मेंटर अंडर माय सुपरविजन, और वो इंटरव्यू गिवन मेंटर जो रहेगा वो आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे बैलेंस कैसे करना है, जीएस मेंस, जीएस ऑप्शनल आंसर राइटिंग, राइट, हाउ टू अवॉइड दैट बर्न आउट, व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी, राइट, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन पे हैं, तो वहां पे दिस मेंटर विल टेक सेशन, ठीक है ना। तो ग्रुप मेंटरशिप रहेगी यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। अंडर माय सुपरविजन द मेंटर विल बी ट्रेन्ड बाय मी एंड इट विल बी ओवरसीन बाय मी, ठीक है। सेकेंड लेवल पे ये रहेगा कि अगर आप एमएमपी का जो कोर्स लेते हैं विद मेंस टेस्ट सीरीज, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे देयर विल आल्सो बी लाइव इवैल्यूएशन। सो आफ्टर यू हैव रिटन द आंसर, बिकॉज मेंस प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। विदाउट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर प्रीलिम्स।
तो मेंस आंसर राइटिंग में क्या रहेगा, मेंस आंसर राइटिंग के बाद लेट्स से इफ यू हैव गिवन द टेस्ट, दे विल बी अवर मेंटोर, जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, आपका लाइव इवैल्यूएशन होगा। उसका मतलब क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली बताएगा कि 4 नंबर क्यों अब आपको दिए, 3 नंबर क्यों दिए, 5 नंबर क्यों दिए। तो जो एक रैंडमनेस होती है टेस्ट सीरीज की, यार मेरे को एवरीथिंग इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और मेरे को मार्क्स मिल रहे हैं 3 नंबर, तो वो रैंडमनेस हम लोग खत्म कर देंगे थ्रू दिस, ठीक है ना। थर्ड लेवल पे क्या होगा, आई विल बी टेकिंग आंसर राइटिंग लेक्चर्स, पोस्ट टेस्ट आंसर राइटिंग लेक्चर्स। लेट्स से अगर आपने मेंस टेस्ट सीरीज के साथ एमएमपी लिया, तो आफ्टर एवरी टेस्ट आई विल टेक आंसर राइटिंग लेक्चर, जहां पे मैं जो आपने टेम्पलेट सीखे हैं राइट स्मार्ट वगैरह में, वो सारे टेम्पलेट्स को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको आंसर्स में, टेस्ट के आंसर्स में। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर लेट्स से AIR4 या AIR21 या फिर AIR27 जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे, अगर वो पेपर लिख रहे होते तो वो क्या लिखते इस आंसर में। तो वो जो वाव फैक्टर होता है, वो जो एक्स फैक्टर होता है, दैट कैन हेल्प यू क्रॉस 440-450 मार्क्स इन GS, वो एग्जैक्टली मैं आपको उन लेक्चर्स में बताऊंगा। सो वहां पे दे विल बी 20 लेक्चर्स ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो वो जो एज आई हैव टोल्ड यू 3 लेवल पे होगी, ग्रुप मेंटरशिप होगी। सेकेंड लेवल पे इफ यू आर राइटिंग आंसर, दे विल बी, यू कैन हैव अ लाइव इवैल्यूएशन जहां पे आपकी प्रॉब्लम डिस्कस होगी। थर्ड लेवल पे वो जो एक्स फैक्टर ऐड कैसे करना है, वो जो वाउ फैक्टर ऐड कैसे करते हैं। तो जो भी मेरी 600+ रैंकर्स की जो मेरी एक्सपीरियंस है, आई विल बी शेयरिंग दैट इन दोज लेक्चर्स। सो दैट्स हाउ द मेंटरशिप component will function in the MMP program. Let us now come to the schedule of this program. Unfortunately, UPSC के मेंस में इस बार टाइम बहुत कम है, तो content and answer writing has to be balanced together. Rather than showing you the dates, let me first show you the idea behind the schedule that we have made. हम किसी भी सब्जेक्ट का पहले कंटेंट पढ़ेंगे। लेट्स से मैंने फर्स्ट वीक में GS1 का कंटेंट पढ़ा, देन इन द नेक्स्ट वीक आई विल डू आंसर राइटिंग ऑफ GS1 एंड लेट्स से आई एम स्टडिंग GS4। पहले वीक में मेरा GS1 खत्म हुआ, अब मैं नेक्स्ट 2 वीक्स में GS1 की आंसर राइटिंग कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पर कर रहा हूं राइट स्मार्ट एंड लॉज ऑफ GS1, और GS4 का कंटेंट मुझे मिल चुका है। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग GS4। 2 हफ्ते यहां गए, उसके अगले 2 हफ्ते में आई एम डूइंग आंसर राइटिंग फॉर GS4 एंड नाउ आई एम रीडिंग द कंटेंट फॉर GS3। 2 वीक्स यहां गए, देन आई मूव ऑन टू essay, देन आई मूव ऑन टू GS2। तो सिमिलर आइडिया, पहले एक पेपर का कंटेंट पढ़ा, उसकी आंसर राइटिंग करते हुए दूसरे पेपर का कंटेंट पढ़ा, उसकी आंसर राइटिंग करते हुए तीसरे पेपर का कंटेंट पढ़ा, ताकि आपके दिन का सिंपल सा आइडिया है, आप दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 5 आवर्स 4 आवर्स आप हमें दीजिए फॉर GS, प्रेफरेबली 6 आवर्स, बाकी 6 आवर्स आप दीजिए अपने ऑप्शनल को। सो हाफ ऑफ योर डे यू गिव टू अस, जिसमें हम कुछ टाइम आंसर राइटिंग पे लगाएंगे, कुछ टाइम कंटेंट पे लगाएंगे, और बाकी टाइम आपके ऑप्शनल के लिए फ्री है। आई नो दिस इज अ रिगरस टफ शेड्यूल टू फॉलो, बट टाइम कम है, सो वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस। तो आप यहीं पे देखेंगे कि कंटेंट एंड आंसर राइटिंग इज गोइंग टुगेदर इन द वे दैट आई टोल्ड यू। एक और रीजन है जिस वजह से हमने शेड्यूल को इतना रिगरस रखा है, और वो रीजन है कि हमें इस कोर्स का कंटेंट 26 जुलाई तक खत्म करना है, ताकि लास्ट का 1 मंथ आपको आपकी रिवीजन के लिए मिले। उसमें ऑफ कोर्स हम आंसर राइटिंग करेंगे, बट ऑप्शनल भी होता है, बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। अगस्त मंथ वी विल कीप फॉर रिवीजन। तो इफेक्टिवली हम जून और जुलाई में पूरा मेंस प्रिपेयर करने वाले हैं। You show effort, you work hard, and we promise that we will work harder than you. This year we are providing 3 version of MMP Plus to you. देखिए लास्ट ईयर कुछ डिमांड्स आए थे आपके MMP Plus में हमें, तो वो हम इस बार ऐड कर दे रहे हैं। As per your need, you can choose among all these 3. सबसे पहले बेस वर्जन है, तो जो MMP Plus सारथी IAS कन्वेंशनली करता आया है, वो यहाँ पे हम उसको बेस वर्जन बोल रहे हैं। सब फीचर है यहाँ पे, कंप्लीट GS कवरेज, राइट स्मार्ट, लाइव आंसर राइटिंग सेशन, प्रैक्टिस टेस्ट, करंट अफेयर, ग्रुप मेंटरशिप। 2 फीचर जो आपने हमसे लास्ट ईयर भी डिमांड किए थे, वो हैं एक तो लॉज का इवैल्यूएशन की, जो लाइव आंसर राइटिंग सेशन में आप क्वेश्चन लिखेंगे उसका इवैल्यूएशन हो जाए, और दूसरा जो यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट है, दैट इज मेंस टेस्ट सीरीज, उसका भी हम आपको इवैल्यूएशन दे दें। ये 2 फीचर हमने सब्सिक्वेंटली आगे के प्रोग्राम्स में ऐड करे हैं। प्रो प्रोग्राम में आपको लॉज का इवैल्यूएशन मिल जाएगा, और जो आपका फाइनली प्राइम प्रोग्राम है, वहां पे आपको मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द ओनली डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 प्रोग्राम जो हमने इस बार नए लेके आए हैं।
लास्ट ईयर आपने डिमांड किया था कि सर लॉज इवैल्यूएशन होना चाहिए और मेंस टेस्ट सीरीज भी हम इसी के साथ इंटीग्रेट कर दें, तो दिस ईयर वी हैव डन दैट. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करें, जो आपको नीड फील होती हो उस प्रोग्राम को आप यहां पे चूज कर सकते हैं. दीज आर द रिस्पेक्टिव प्राइसेस फॉर द कोर्सेज. डन. इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड वी आर स्टार्टिंग द ओरिएंटेशन ऑफ दिस बैच फ्रॉम 1st of June. प्लीज रिमेंबर, समय बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी कोर्स की वीडियो डाल के विद इन 2-3 days वी आर स्टार्टिंग द कोर्स. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. सी यू नेक्स्ट टाइम.